Sat Shri Akal, Namaste, and welcome to another soul stirring episode of When Artists Speak by Let's Talk Art. The space where tradition meets transformation, where intuition meets insight. Whether you're listening from a vibrant city, Jalandhar, or miles apart, you are in for an episode that may just shift your perspectives. Today, we are here to delve deep into the realm of tarot, the symbolic, the intuitive, and the unseen. And guiding us through this journey is someone whose path has always danced between the mystical and the meaningful. Our guest today is Mrs. Rivija Kumar, a gifted tarot card reader whose insights help people reconnect with their inner compass. Though classically trained in Kathak, it's her intuitive ability with the cards that has led to become a sought after spiritual guide and energy reader. Join us as we explore how the ancient symbols of tarot can illuminate our modern lives, offering clarity, healing, and sometimes a little cosmic nudge which is needed by all of us. I'm your host, Reha, and you're listening to When Artists Speak by Let's Talk Art. Ravija ji, welcome to our show. Thank you, Reha. And before we dive into the world in the realm of mystical tarot reading, I would like to ask you a personal question now. How did this transition from classical dance to tarot came into your life, ma'am? रेहा सच कोई कनेक्शन नहीं है दोनों का, Alright. क्योंकि क्लासिकल डांस कथक तो मैं बचपन से सीख रही हूँ, Wow. तो एज ए हॉबी वो धीरे धीरे प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया. Right. सो और जो मेरा टैरो है, around 3 years back, one of my friends, she's a very good astrologer. Okay. She told me कि just for fun, she said कि चल रविजा, give me your date of birth. Right. चलो बैठते हैं देखते हैं तेरा. तो उसने देखा, then she said why don't you try for occult education. Okay. So I told her I think this is not my cup of tea. Then she said no Ravija, you must try, you have a very good intuition skills. All right. So this is how it starts. So that came up in your horoscope that Yeah. you are intuitive, you are gifted Yes. to be intuitive. You can say that. Wow. And as you said, it was like 3 years ago. Yeah. And was there any particular reading, any personal experience that आपका टैरो में जो कनेक्शन था वो और ज्यादा डीपर हो गया? ये तो उन्होंने आपको एक बार बोला 3 साल पहले, आपने इंसिडेंट हमारे साथ अभी शेयर किया, जिसमें उन्होंने आपको बोला कि आप इंट्यूटिव है, आप इस फील्ड में जा सकते हैं. जी. आपने एक और टर्म यूज किया, ऑकल्ट एजुकेशन. अगर आप उस पर थोड़ा सा लाइट डालेंगे, बिकॉज दिस इज वन टर्म दैट is quite alien to us. तो अगर आप थोड़ा सा बताएं. अगर आप बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी की, Okay. तो दैट इज कल्ट एजुकेशन. Alright. ठीक है, बट टैरो इज ओकल्ट एजुकेशन. Alright. एंड ओकल्ट मींस टैरो वर्क्स ऑन एनर्जी. Alright. ठीक है, ठीक है, आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी, सपोज आपने करवाना है टैरो, मैंने करना है, ठीक है. सो आपकी और मेरी एनर्जी इक्वली काम I was करेगी. just planning to ask you this, that if अगर आप कहीं बैठे हैं, कोई रूम में एंटर होता है, तो are you able to trace their energies? Is it possible for a tarot reader like? Yes, it is possible. It is. क्योंकि आप किस इमोशंस के साथ आप आ रहे हो, Right. वो हम कैच कर लेते हैं. Great, great. सो आप सपोज आप मेरे साथ पूरी फेथ से आ रहे हो, Right. उसी के हिसाब से टैरो कार्ड्स वर्क करेंगे. आपने एंटर किया, आपके मन में डाउट है Right. कि आपको पूरा फेथ है या नहीं, कार्ड्स उसी के हिसाब से बात करेंगे. इतना strong है. Yes. So it's all about energies. It's when all it comes about to energy. tarot reading and intuition, of course. Of course. Which you are God gifted with. Great. I mean, I'm already getting goosebumps right here that I hope I am, radiating all positive energies in front of ma'am. And yeah. But ma'am, like for someone like me who is always very doubtful, who doesn't know anything about tarot, like agar as a layman baat kare hum log, so how are you going to convince somebody that yes, tarot is a science? Of course, it's an art, but also it's a science. As you said, it's an occult education. So it's a proper study behind it. How are you going to convince a person that yes, there is some substance into what you are coming for? आप कैसे convince? See, इसमें किसी को हमें कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती.
सिर्फ एक चीज़ जो मैं कहती हूँ सबको Right. कि आप जब आते हैं आप पूरे फेथ के साथ आएँ, Great. ठीक है? और आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या जानना चाहते हैं, Okay. ठीक है? आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, वो आप हमें बताएँ और आप जितने फेथ के साथ आप बताएँगे उतने ही अच्छे से मैं आगे से आपको बता पाऊँगी। मतलब the questions have to be very specific to the point. Is it like that? या मतलब Then the answer will be specific. क्वेश्चन कोई भी हो Okay. बट आप बहुत सामने वाला बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो क्या जानना क्या चाहता है। All right. So is it like अगर इसी लाइंस पे हम चलते रहे आगे और मैं आपसे पूछूं कि अभी तक आपने कितनी ही रीडिंग्स कर ली होंगी, राइट? मोस्ट कॉमन टॉपिक्स क्या रहते हैं, जैसे इज इट लव लाइफ, इज इट करियर, इज इट हेल्थ? सबसे मोस्ट कॉमन टॉपिक रहता है लोगों का फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं लोगों को, तो लोग उसके रिगार्डेड काफ़ी उससे रिलेटेड काफ़ी आते हैं कि फाइनेंशियली कैसे ग्रो किया जाए, ब्लॉकेजेस कैसे रिमूव की जाए अपनी लाइफ से। एंड देयर आर रेमेडीज। देर आर सो मेनी रेमेडीज। देर आर कुछ लोग आप पाठ पूजा करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वी विल गाइड पीपल कि आप पाठ पूजा, कुछ लोग पाठ पूजा नहीं इतना कर पाते तो फिर हम उनको रेमेडीज बताते हैं Okay. कि आप अपनी लाइफ से ब्लॉकेजेस को किस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। So I can say that first the blockages are recognized by you with the help of tarot. Exactly. And then customized advice is given, right? हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल कि बिल्कुल। पहले तो आप ब्लॉकेजेस उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और जो जो आपको लगे कि इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए ये रेमेडी सबसे, सो इट्स ऑलवेज टू ईच इट्स देयर पर्सनल थिंग, राइट? एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि एक रेमेडी चलो मुझे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं भी अपने पे अप्लाई कर लूं, ऐसा तो नहीं चलेगा। ऐसा किसी सबकी डेस्टिनी अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, ऑलराइट। सो उसके ऊपर डिपेंड करता है। So it always has to सबके be स्टार्स personalized डिफरेंट thing. हैं। Yes, yes, definitely. So मैम आप सिर्फ लाइक अपनी रीडिंग्स में अपने टैरो कार्ड्स का यूज करते हैं या फिर अदर इक्विपमेंट्स लाइक क्रिस्टल बॉल्स और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब भी यूज करते हैं? मैं एस्ट्रोलॉजी तो नहीं, मैं बट न्यूमरोलॉजी यूज करती हूँ मैं। Alright. और टैरो कार्ड्स के अलावा आई यूज ओरेकल्स। Okay. शिवा ओरेकल्स, कृष्णा ओरेकल्स, वो आपको हेल्प करते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में कि अब आपको अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से अब आपको क्या करना चाहिए। And if you can just explain what is Shiva Oracle, because again maybe our viewers are not aware शिवा, of that. हाँ ज़रूर। शिवा ओरेकल्स मीन्स लॉर्ड शिवा, Alright. ठीक है? Yes. कि आपको लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। Oh. यस। So is it a book or is it again cards? It is again cards. Oh, It great, is again great, cards. great. So tarot is all about energies, and this Shiva oracle is directly a message from Lord Shiva. There is a directly message from Lord And Shiva. how does one practice that? Is it like they pick up a card and then you read it for them, or आप जब कार्ड पिकअप करेंगे, Right. आपके मन में सवाल तो होते हैं, बिल्कुल, ठीक है? कई बार आपको, अगर आप पूरे फेथ के साथ आए, right. आपको नो नीड टू टेल मी, ठीक है? Oh, आप कार्ड उठाएंगे, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका कार्ड ही वो निकला है, मैसेज वो आया है जिससे रिलेटेड आपका इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है आपकी लाइफ में। great. इसीलिए इसको हम बार बार कहते हैं दैट इट वर्क्स ऑन एनर्जी। This is truly magical. Like again, we always say, see again, I would like to once again say that this tarot reading is a mystical study. It is. There's always a, a very fine line between spirituality and skepticism. So again, वही बात आ जाती है कि हमेशा एक डाउट सा रहता है मन में कि क्या ये सही है जो रीडिंग आई, क्या ये स्पिरिचुअल मैसेज है, जैसे आपने शिवा ओरेकल का हमें एग्जांपल दिया अभी, लाइक अ मैसेज डायरेक्टली फ्रॉम लॉर्ड शिवा देयर, or is it something skeptical? Maybe it's true, maybe it's not. So can people like me or people like out there, can they actually implement tarot card reading in major decision makings of their life? अगर उनको कोई बहुत major decision making, maybe they have to start a new project, or maybe they have to go in for a surgery. मैं बस एक एग्जांपल्स ले रही हूँ, शायद आपके you must have come across all these examples ना, कि या फिर अपना लाइफ पार्टनर चूज करना है। So, क्या हम टैरो कार्ड पे रिलाई कर सकते हैं when it comes to major decision making? सी, आप टैरो कार्ड पे रिलाई कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें आपको येस और नो में आंसर मिलता है। Okay. इसमें क्या होता है कि आप की करंट सिचुएशन क्या है, Alright. आपकी डिजायर्स क्या हैं, Right. ठीक है? आपका इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप कितना डरे हुए हो, आप कितना बोल्ड हो, उसके बिहाफ पे हम आपको बताते हैं कि आपका ये करंट सिचुएशन, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए सूटेबल होगा, ये नहीं होगा। सी, इट ऑल डिपेंड्स।
Again, energies. It all depends on your current situation Current also. situations, the energies that कि we are. आपके इस वक्त लाइफ में क्या चल रहा है, आपका इस वक्त फॉर एग्जांपल सपोज आप कहते हैं कि मेरे को डिसीजन नहीं मैं ले पा रही हूँ, तो सपोज एक कार्ड आया 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड, Okay. तो उसमें क्या होता है कि उसका मतलब ये है कि आपके पास सामने चॉइसेस हैं Alright. बट आप ले नहीं पा रहे हो, Okay. आप उनको अवॉइड कर रहे हो, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हेल्प पीपल कि कैसे आप डिसीजन लो और कौन सा स्टेप उठाओ, किस टाइम पे उठाओ, ये वाला अभी आपका ये टाइम नहीं ठीक चल रहा, थोड़े टाइम के बाद लो. Okay. दिस इज हाउ we can guide people. And people can actually implement them in their real life and can go And ahead with the decision again Again, depending upon the faith. faith. Yes. ये बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ बिल्कुल. कि अगर आपके मन में डाउट है तो आप वो एक हिंदी में कहावत है कि डॉक्टर, वकील और पंडित से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना. Very rightly said. तो अगर आप सपोज मैं आपको कह रही हूँ कि आपके साथ ये चल रहा है और आप कह रहे हो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर मैं आपको सोल्यूशन ठीक नहीं दे पाऊंगी. So you have to be very transparent and clear with your reader. Yeah. All right. So again, disclose everything when it comes to you. हाँ. And जैसे आपने बोला that we have to disclose everything. So when people come to you for a remedy, और वो बहुत परेशान है, उन्होंने अपनी परेशानी आपके साथ शेयर की, क्या कभी मैम ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप खुद उस परेशानी से परेशान हो गए? Anything that affected you emotionally or deeply, very. ऐसा बहुत बार हुआ है. हाँ, एक मेरे पास एक केस आया था एक लेडी का, काफ़ी डिस्टर्ब थी वो अपनी फैमिली लाइफ अपने हस्बैंड से, तो मैं 1 वीक तक काफ़ी इफेक्ट रही थी. सो इसीलिए हमें बार बार हम इसमें टैरो इज एक्चुअली इट्स अ विजडम और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डिमांड करता है बहुत. Okay. सो हमें अपना ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखना होता है. I was just about to ask this question, like if becoming a tarot card reader, what are the preparations that you do before every reading? And that what you said, just mentioned कि हमें अपना ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखना होता है. So थोड़ा सा कुछ और आप बताएंगे कि क्या क्या आपके रिचुअल्स रहते हैं, क्या क्या प्रैक्टिस ऐसी रहती है कि जिससे आप एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के बाहर आए. एंड otherwise it's ladies are supposed to be like obviously Yeah. they are strong, they are mentally strong. हाँ, ladies are but they are very strong. अगर आप उनको कंपेयर करें we have examples from the हाँ. ancient of times where हाँ. ladies have leaded the it's all about वो उन्होंने बहुत successfully. Today our country is being led by a lady, so being the president of our country. But then again, there are breakdown moments for a lady as well. There are breakdown moments that behind closed doors you just sit and you want to just weep for some time. तो ऐसा टैरो में भी आपके मतलब आपने कोई ऐसी रीडिंग की जैसे आपने बताया एक लेडी अपने हस्बैंड से बहुत परेशान थी और आपको लगा कि आप भी उस चीज से बहुत इफेक्ट हुए. Maybe you connected so deeply with that lady. You could feel her pain. Maybe there was so much of I could feel her pain. You could. So इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है. Okay. उसी से आपका ऑरा भी स्ट्रांग होता है, आपकी इंट्यूशन स्किल स्ट्रांग होती है. Right. सो मैं मेडिटेशन पे बहुत एम्फसाइज करती हूँ सबको, खुद भी मैं करती हूँ और जो मेरे पास आता है मैं उन्हें भी यही कहती हूँ कि मेडिटेशन जो है वो रियली एक मैजिक की तरह वर्क करती है. Right. कि लोगों को लगता है अरे टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे आंखें बंद करके बैठने से क्या हो रहा है. स्टार्ट डूइंग, देन यू रियलाइज कि क्या कैसे वर्क करती है. Is it true it takes you to another world, like sitting here you can. बिल्कुल. Yes. हाँ, धीरे धीरे. अब जैसे सपोज आप 10 मिनट्स नहीं बैठ सकते, स्टार्ट फ्रॉम 2 मिनट्स. डजंट मैटर, स्टार्ट फ्रॉम 2 मिनट्स. बट जो मेडिटेशन वर्क करती है वो कोई और चीज़ नहीं कर सकती. And if I may ask, like, can anybody become a tarot reader? Like, मतलब अगर मैं ये स्टडी करूँ टैरो रीडिंग की, क्या मैं टैरो रीडर बन सकती हूँ या मुझे इंट्यूटिव होना ज़रूरी है? जैसे आपके केस में मैम, मैं अगर दोबारा रिपीट करना चाहूँ, कैसे आपके फ्रेंड ने 3 years बैक आपके आपके बर्थ चार्ट में देखा कि हाँ आप इंट्यूटिव हो, you are gifted. So is that necessary, or if I study tarot reading, even I can become a one? कोई भी सीख सकता है ये स्किल, ऐसा नहीं है. और ये आप अपनी स्किल्स खुद डेवलप कर सकते हो. ओवर टाइम वी कैन डेवलप देम. हाँ बिल्कुल. क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती कि आप इन्हीं को माने इनको नहीं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, बट स्टार्ट ट्राई कि आप
धीरे धीरे आप स्पिरिचुअली आप जितना ग्रो करते जाएंगे और वो प्रैक्टिस के साथ होगा, Okay. तो आप ये स्किल सीख सकते हैं। आपके अंदर नहीं है तो आप उसको अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। But like obviously, as you said, बट that यस, हाँ, ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा सा इसमें आपको इंट्यूशन आपकी होनी ज़रूरी है yes. अच्छी। So I guess with experience also, you do become, once you're honest. What I personally believe here, that if you're honest to yourself, you're honest to the people around you, you are intuitive. Everybody has that sense of सबके intuition. अंदर, यू आर एब्सोल्युटली राइट Yes. रेहा, ये सबके अंदर होता है। Yes. आपको जरूरत है अपने आप को एक्सप्लोर करने की। And this reminds me, I'm so sorry, I'm going off the track now, but this reminds me of a scene from K3G, Kabhi Khushi Kabhi Gum, where Jaya Bachchan holds a thali and then she's intuitive. That's what intuition is. And you know, this मतलब मैं अभी मैम से बातें कर रही हूँ यहाँ पर और suddenly वो scene मेरे mind में आ रहा है. So I had to share it with my viewers here. That you know, that is what intuition is, where Jaya Bachchan, she just turns around and she goes और उनके बेटा आ रहे हैं, वो थाली लेके and she was like शाहरुख खान सरप्राइज देने आ रहे हैं और यहाँ पे. But jokes apart, yes, once you're honest to yourself, once you are honest to the people around you, you do become intuitive. I have also read in many scriptures, be it Durga Stuti, be it Hanuman Chalisa, be it the Lakshmi Stotra, that it says if you do this part for these many days, you आपको आने वाली बात का अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा, which again is being intuitive, isn't it ma'am? So वही है, spiritually हम connect हों, honest रहे तो intuition अपने आप हमारी strong होती है। बिल्कुल। और चाहे हम tarot reading की तरफ जाएं ना जाएं, that is one thing, like if I want to become reader or not, but being intuitive is something that anyways helps us. You know, it's the sixth sense that helps us to prevent something wrong that may happen to our family members, to us. So this is one thing that I would like to say, just be honest to yourself. थोड़ा सा टाइम, भगवान जिस भी भगवान को आप मानते हैं, मैं सिर्फ मैम की बातें रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर, और you'll be intuitive enough. And of course, we always may seek guidance from tarot readers, acknowledged tarot readers from like ma'am here, Rivija ma'am, who actually helps us to take decisions जो जिस टाइम पे हम थोड़े से स्केप्टिकल रहते हैं अपने लाइफ में कि क्या ऐसा करें या वैसा करें, तो ये गाइडेंस जो मिलती है हमें मैम आपके जैसे टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला शिवा ऑरेकल एंड ऑल दीज प्रैक्टिसेस जो आप करना चाहते हैं, जो आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और आपने भी अपनी स्किल्स जैसे ओवर टाइम डेवलप की और हमारे साथ शेयर किया. Alright, now coming to the practicalities here, ma'am, if you can walk us through the deck of cards, the mystical tarot cards here, and also if you could, you know, throw some light on the difference between major arcana and minor arcana. That is what I've, you know, got to hear. Okay, मतलब I generally get to hear this कि tarot cards में major arcana और minor arcana होता है, but I have no clue what is it about. तो आप प्लीज हमें बताइए, और इसके साथ साथ ही मैम कोई एक ऐसा कार्ड का एग्जाम्पल भी दीजिएगा हमें जो फ्रीक्वेंटली शो होता है आपकी रीडिंग्स में. श्योर. Yes. पहले स्प्रेड करते हैं. ठीक है. ओके रेहा, आप कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में? Maybe my future career. So it's my future and my career, right? Okay. Yeah. Fine. For love life, I don't need to. I already have. Oh. See, for example, major and minor arcana you asked, ठीक है? Yes. अब ये जो कार्ड है ये मेजर, इसको बोलते हैं मेजर arcana If you कार्ड. can show us to our viewers. This is major arcana, right? The Chariot. इसका मेजर जो ये जो कार्ड है King of Wands, this is minor. Okay. ठीक है? इसका डिफरेंस क्या है? मेजर अरकाना में हम देखते हैं पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म, Alright. जैसे कहते हैं दूर की सोचना. Okay. मेजर अरकाना में आपका ओवरऑल लाइफ के बारे में बताता है, आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर बताता है. माइनर अरकानास क्या होते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन, आपकी करंट लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है. Alright. ठीक है. सी, जो आपका मेजर अरकाना ये बोलता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. Okay. ठीक है, और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं. Okay. ठीक है, और जो आपका करंट सिचुएशन ये बता रहा है दैट यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर करियर, बट देयर आर सम पीपल जो थोड़ा सा बैक बाइटिंग कर रहे हैं आपकी लाइफ में.
ठीक है. ये आपकी Oh, करंट, that's like a part of everybody. Like, yeah, that's a part once of you move ahead, everybody. there are so many people always pulling you हाँ, down. So there और is no स्पेशली way. आपकी बैक बाइटिंग तब तो जरूर होगी कि अगर आप वाकई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, Okay. तब तो डेट इज फॉर श्योर कि आप लोग आपकी पीठ पीछे बात करेंगे. बट सी, सिटिंग ऑन अ थ्रोन, Yes. दैट मीन्स यू आर डूइंग वेरी वेल, Oh. राइट? This podcast, couch also feels like a throne to me at present. So thankful to God, to the Almighty above. But yes, I did understand the difference between major arcana and minor arcana with the help of the small demonstration that ma'am you gave us to us. मतलब बिल्कुल समझ आ गया कि major arcana is basically your long future and it's your general life ahead, and minor is like current, what is happening around you right now. If Right, I'm not right. wrong, ma'am, बिल्कुल this बिल्कुल is, यही है. yeah. आपकी ये करंट माइनर अरकानास आपकी करंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है. All right. And even if you get cards like people are backbiting, I think that's a part of it. That's a Yes. part of it. जैसे हमने इतनी देर पहले बातें की, तो I know how much it matters to be strong from inside, as you just told me. But अगर कोई आपके पास कोई ऐसा आए who have just started their career, their current career situation looks very promising. Like we have King of Wands here. As a card, and it looks very promising, but then they do get a card of people backbiting. तो ऐसे ना जल्दी से हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो क्या साथ में ही आप उनको थोड़ा सा काउंसलिंग भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं. Wow. करना पड़ता है क्योंकि लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं. बिल्कुल. एंड सबके साथ होता ही है. And it comes with age also. Now once you are at the beginning of your career, you feel very discouraged कि मैं इतनी मेहनत करती जा रही हूँ, करता जा रहा हूँ, और फिर भी I'm being pulled down for some reason. हाँ. I'm not getting the actual result of the hard work that I am putting in. So जैसे आपने बोला, आप साथ में जैसे counseling अभी भी आपने बताया कि जैसे बहुत लोगों का कंप्लेंट होता है कि हमें हमारे हार्डवर्क का जितना हम हार्डवर्क डाल रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा. Alright. तो फिर हम फिर उस पॉइंट पे आके हम लोगों को रेमेडीज देते हैं. And is there a particular card that shows that actually proves कि हाँ इनको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं मिल रहा है? They are toiling like anything, they are working very hard and they're not getting the expected. ये भी कार्ड्स में शो हो जाता है? बिल्कुल होता है. It does show. It does show. Great. It proves that what they're thinking is correct actually. Exactly. All right. So ma'am, after the thrilling revelation of my destiny, as you just did, which of course has motivated me in a more positive way. And I think ऐसे ही सब लोग निकलते होंगे हर रीडिंग के बाद. मैं होप करती हूँ जब भी कोई आपके पास आए एकदम पॉजिटिव होके आपके रूम से बाहर निकले अपनी रीडिंग करा के. और मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ जैसे आपने बताया कि हाँ ठीक है, लाइफ में अप्स डाउन्स एंड हाउ वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ. सो मैम, ऐसे ही जब आप रीडिंग्स करते हैं, क्या कोई ऐसा कार्ड है जो बहुत फ्रीक्वेंटली निकलता हो? हाँ, एक कार्ड है ऐसा जो बहुत फ्रीक्वेंटली निकलता है. मोस्ट कॉमन वन क्योंकि आजकल लोगों की वो प्रॉब्लम काफी ज्यादा है. ऑलराइट. दिस वन, द मून. ये काफी फ्रीक्वेंटली आता है क्योंकि लोगों को बहुत बॉदर करता है कि लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं. ऑलराइट. बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि आपके पास यू हैव एवरीथिंग बट स्टिल आपको बॉदर कर रहा है, उसने मेरे बारे में क्या बोला, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला. तो ये बहुत कॉमन कार्ड है जो निकलता है. It's because we can always link it to social media as well. Exactly. Like, since everything has its pros and cons, here we are sitting here connecting to our audience through social media, of course. But then, if we get a negative comment, if we get a negative review, if we get affected, then I guess this card is something. क्योंकि सोशल मीडिया भी एक रीजन बन गया है कि अब जो लोगों को बहुत ये इम्पोर्टेंट हो गया लोगों के लिए कि अरे उसने मेरे बारे इसने लाइक किया, कितने लाइक्स आए, अभी पोस्ट किया, अभी लाइक क्यों नहीं आया, अभी लाइक क्यों नहीं आया, फिर मिडनाइट में उठ के देख रहे हैं अब तक कितने लाइक्स आए. सो दिस अप्रूवल, वैलिडेशन इज समथिंग that is affecting young minds, and irrespective of age enough, everybody is getting affected. Actually, I mean, मुझे तो ऐसा लगता है बस आप अपना काम करो. हाँ, आप अपना पर्पस सॉल्व करो एंड उसके बाद ठीक है. बिल्कुल. आप अपना काम पे जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतना ही. मतलब इसमें कुछ ऐसा ये इज इट अ फॉक्स, अ डॉग, अ स्कॉर्पियो, क्या ये सब चीजें जैसे मुझे इस कार्ड पे दिख रही है, आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए. ये सिग्निफिकेंस करता है लोगों को कि जो लोग आपके पीठ पीछे बोल रहे हैं. ओके. और आप
आपको एक सूरज की तरह आपको चमकना है, राइट, ठीक है? अपने काम पे ऐसे फोकस करो कि आप सूरज की तरह चमको, कि आपको फ़र्क नहीं पड़े कि आप ऊपर, इतनी ऊपर हाइट पे चले जाओ, इतनी ऊँची ऊँचाइयाँ छुओ कि आपको नीचे से दिखे, कि कोई दिखे भी ना कि कोई बोल भी रहा है आपके लिए। again a pro tip from the lady herself sitting amongst us. See, that's what it's going to, that's how it should be. This is how it should work for you, that कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए. You must do your work, serve the purpose, and shine like a sun. Yeah, is it not? exactly. And again, like, as we conclude today's episode, and though your Kathak training, your Kathak as a profession, as a hobby, it was not a focus of our today's conversation. But मैं पर्सनली आपसे ये बात पूछना चाहूंगी कि जो एक आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, इंट्यूशन, ये सब जो कथक में रहता है, डिसिप्लिन, क्या वो कुछ हेल्प यहाँ पे हुई टैरोट कार्ड रीडर बनने में? इज इट बिकॉज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स दैट एवरी स्पिन when you do in a kathak, every spin is about storytelling. It's a tale that you're unfolding. It's a spiritual journey that you're unfolding. So that, can I say that discipline, that intuition, that art of storytelling has helped you in your tarot card reading journey as well? Is it, ma'am? See, there is a saying that classical dancers are very good tarot card readers. Oh, this is a new secret. So, Yeah. of course, yeah, because they're intuitive for sure. They are good storytellers. Second, and third, of course, they're spiritually connected as well. मेन जो रीज़न है वो यही है कि क्लासिकल डांस में और इसमें कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हो. Alright. So that's the connection. That's the that we connection. can understand. Exactly. Alright. There is no rocket science. There is no secret. Alright. So that discipline has definitely helped you, because आपने भी बोला कि एक मॉर्निंग रिचुअल है, मेडिटेशन है, जो आप करते हैं और आपकी स्किल्स ओवर टाइम जैसे डेवलप हुई हैं, and I'm sure it has reached to the level of excellence with time, ma'am. So yes, of course, it's the discipline that was instilled from your Kathak days, as you said, कि आपने बचपन से ही जिसको आपने as a hobby start किया और फिर as a profession भी pursue किया. I must tell my audience that ma'am has performed on international stage as well. So yes, of course, I mean, we do have to mention that, ma'am. I know we are here for tarot cards, but then again, so of course, ma'am. And today I can definitely say that time का बिल्कुल पता नहीं लगा. With ma'am, I have learned so much, and of course there's a lot of motivation also that I got after my card reading and everything, that yes, I could actually relate to it. मैं कह सकती हूँ कि this is very accurate, ma'am. It is. So again, ma'am, जैसे जितना भी हमारा रहा, जो भी हमारी जर्नी आज की रही, I'm sure जो भी आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें हमारे साथ के जस्ट अ क्रक्स, अगर आप कहना चाहें टैरो कार्ड के बारे में कुछ भी, कि बस थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए कि कैसे वो प्रिपेयर होके आए, किन चीज़ों के साथ वो प्रिपेयर होके आए, फुल फेथ के साथ, जैसे आपने बताया. एक छोटा सा मैम 2 लाइंस में अगर आप इसको कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को. इसके लिए कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ एक ही मैं बात सबको बोलती हूँ कि एक आपको पता होना चाहिए कि आप क्या जानना चाहते हैं. दूसरा, पूरे फेथ के साथ आए, मन में कोई डाउट लेकर नहीं आए. So ma'am, now it's time to switch gears, and it's time for a small rapid fire round with you, ma'am. Okay. So I'll ask you a question. The rules are simple. I'll ask you a question, और आप जो भी चीज़ आपके माइंड में सबसे पहले आती है, आप प्लीज वो आंसर कीजिए. ठीक है. It's going to be a fun way to end our podcast today, right, ma'am? So if I may ask, what is your favorite tarot card? Which one is your favorite tarot card and why? My favorite tarot card is 6 of Pentacles. If you can show us. Yeah. This is the card. All right. ये मुझे कार्ड इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब ये कार्ड निकलता है तो इसका मतलब ये है कि आप जितनी भी एफर्ट्स डालते जाएंगे, आपको उसके हिसाब से आपको आपके मेहनत का फल मिलता जाएगा. Oh, so this is something that everybody would want. हाँ. कि जितना लोगों को ये पॉजिटिव नहीं लगता, बट ये बहुत पॉजिटिव है. Okay. क्योंकि देखो, हमारी लाइफ में ऐसे भी कितने लोग हैं जो कहते हैं हम इतनी एफर्ट्स डाल रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता. Always. एंड ये कार्ड बताता है कि आप जितने एफर्ट्स डालते जाओगे, आपको उसका फल मिलता जाएगा. Okay. So obviously, जैसे आपने कहा, आपका I mean, ये सबका फेवरेट होना चाहिए. हाँ, सबका फेवरेट होना चाहिए. क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि करना कुछ ना पड़े, बस मिल जाए. तो ऐसे नहीं होता. ऐसा भी कोई कार्ड रहता है डेफिनेटली. ऐसा रूलिंग वाला होता ही नहीं है. अपने लोग में बोलते हैं राजयोग लिखवा के आए हैं. ये तो राजयोग के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी. इसीलिए मैंने बोला कि ये मेरा फेवरेट कार्ड है.
जो ये बताता है कि आपको किस्मत में लिखा हुआ भी मेहनत के बिना नहीं मिलेगा। So truly said, ma'am. And if I may ask you, which is the most misunderstood card in the deck? Misunderstood. जो बहुत मिसअंडरस्टूड कार्ड है वो है डेथ कार्ड। All right. ओके, या हियर इट इज। ठीक है, ये मिसअंडरस्टूड इसलिए है क्योंकि जब ये कार्ड निकलता है लोगों को लगता है डेथ मींस ओ हमारी डेथ होने वाली है। नो No, it's not that. नो, इट्स नॉट Oh. लाइक दैट। डेथ का मतलब क्या है कि जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करते हैं। Oh, so does that mean a new beginning? यस, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो पुराना फेज था, बैड फेज था, वो Oh. ओवर हो गया है। अब आपकी लाइफ में नई जर्नी स्टार्ट होने So वाली it's है। not a negative card for It's sure. not negative It's a very card. positive card. Yes, So it's a misunderstood one. exactly. Yes. So, what do you wish that people should know more about tarot? क्या ज्यादा पता होना चाहिए टैरो के बारे में लोगों को? लोगों को टैरो का जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है, कैलकुलेशंस होती हैं, तो लोगों को ना टैरो में वो फेथ नहीं आता कि अरे इसमें तो कैलकुलेशन ही कैसे निकलेगा, Right. है ना। ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों को टैरो के Okay. मामले में। लेकिन आप देखो, आप अपनी किस्मत कोई नहीं बदल सकता। True. आप आए, आप करें, पूरे फेथ के साथ आप आ रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, ठीक है, आप कार्ड्स निकालें, आपको कार्ड्स वही बताएंगे जो एक एस्ट्रोलॉजर आपका हॉरोस्कोप देख के बताएगा। इतना प्रिसाइज रहता है, इतना प्रिसाइज रहता फुल है, फेथ के साथ आए, फुल फेथ के साथ आए। इट्स आप- दैट प्रिसाइज। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप दूसरी जगह भी जाएंगे वहां पे भी तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हम क्या जानना चाहते हैं, ऑफ कोर्स, है ना। और यहाँ पे अगर वो ना भी बताए, जस्ट एक इंट्यूशन एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी वर्क्स, एग्जैक्टली। एंड देन यू रीड देम आउट। जब आपका एक स्प्रेड लेआउट होता है जैसे ये है, राइट, तो उससे एक स्टोरी बन जाती है आपकी लाइफ की, ऑलराइट, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। ग्रेट, ठीक है, सो इट्स लाइक अ स्टोरी। ऑफ कोर्स। एंड इफ आई मे आस्क, वन मॉर्निंग रिचुअल दैट यू एक्चुअली फॉलो, लाइक बिना आपने कभी उसको मिस नहीं किया है, रोज सुबह उठ के वो आपका हाँ, मैं रोज सुबह उठ के मेरा जो मॉर्निंग रिचुअल है वो है रेडी होके मैं सूरज को जल चढ़ाती हूँ। ओके, ये मैं कभी मिस नहीं करती। इफ यू कुड आल्सो शेयर इट्स बेनिफिट्स हाँ, फॉर आवर व्यूअर्स। एग्जैक्टली, इसके बेनिफिट ये हैं कि आपका जो लोग इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि आपके पीठ पीछे लोग आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं, ये उसमें बहुत हेल्प करता है। ऑलराइट, क्यों, सूरज का तेज कितना है, ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर आप उनको प्रे करते हैं, आप रोज उनको जल चढ़ाते हैं, तो आपका भी ऑरा सूरज जैसा स्ट्रांग हो जाएगा कि लोगों में आपकी ख्याति, मतलब आपका फेम, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। Great. Again a pro tip, as I always say, you get a number of pro tips, and I would suggest one should sit with a pen and paper to note a few pro tips. Of course, they're so handy and it's so easy also. It's very easy. It's very easy, and what a way to start a day. Yes, definitely. और फिर आप पूरा पॉजिटिव पूरा दिन रह सकते हैं। पूरा बहुत दिन अच्छा जाता कोई है। एक ऐसी चीज मैम जिससे आपको लगता है कि हाँ, आज मेरी इंट्यूशन जो है वो ऑन है, या आई एम इन ट्यून विद माय इंट्यूशन? Is there any particular sign that you get in your body, or is it like? No, whenever I said, मेरे जब कोई क्लाइंट आते हैं with the grace of Lord Shiva, हमेशा यही टच वर्ड ऐसा रहा है कि लोगों ने बहुत बहुत बढ़िया रहा है हमेशा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज नहीं ठीक हुआ तो आज ठीक हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। Touch wood to that. Touch wood to that. Yes. And ma'am, one last question. Tarot for you in one word. Mahadev. Wow. On this divine note, we end today's session, ma'am. Mahadev. Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Thank you.